Hi, very good evening to all of you. Today we'll be discussing even more important article from Indian Express. ठीक से आप उनको फॉलो करो और अच्छे से आप रिवाइज करते रहना बाद में. सो फर्स्ट टॉपिक जो आज के लिए वो जॉब्स. आप सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं. जैसे सबसे बड़ा है जॉबलेस ग्रोथ. सिंस द अर्ली 2000 द प्रॉब्लम जो हमने सबसे ज़्यादा फेस की वो क्या है कि इवन दो इंडिया जीडीपी इज इंक्रीजिंग लेड बाय द सर्विस सेक्टर बट जॉब साथ में इंक्रीज नहीं हो रहे और जब तक हम इसको नहीं टैकल करेंगे इस चैलेंज को हेड ऑन बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी में अभी भी रहेंगी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा इसकी वजह से इवेंचुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट वी बोस्ट ना हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल इंडिया में हैं विच कैन इवेंचुअली ऐड टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी. वो पॉसिबल ही नहीं है. इट कैन मे इवन टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर. ये टर्म्स आप याद रखना. दीज टर्म्स आर नॉट मेंशन इन द आर्टिकल बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. लेट अस स्टार्ट नाउ. सो अभी हम जैसे एनएसओ की रिपोर्ट दे. एनएसओ ने अभी रिसेंटली रिवाइज किया था इंडिया का ओवरऑल जीडीपी क्या रहने वाला फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. सो द रिवाइज टू 7.6. अर्लियर उनका 7.3 था. इवन आरबीआई सेड इन द नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट विल बी अराउंड 7%. However, despite these, the problem is the overall labor market. Okay, the state of labor market and capacity of economy to generate more productive forms of employment. That's a big question mark in front of us. And how we are going to understand about this? It's on the basis of the new report which has recently come out. So, data from periodic labor force surveys has shown that there has been steady increase in labor force participation. Labor force participation in India में increase हो रहा है. क्यों? Because of the coming of the women are participating in large numbers. So those aged 15 and above, participation has increased from 49.8% to 57.9%. Roughly 8% increase हो गया है. And much of this has come because of the women entering the labor force. The female labor force participation has increased from 23% to 37%. So roughly अगर आप देखोगे 50% से increase हो गया, 50% के आसपास. However, जो रिपोर्ट आई है उसका नाम क्या है? इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 prepared by ILO and Institute of Human Development. It points out that post 2019, roughly 2/3 of the increase in employment comprising of self-employed workers, among whom unpaid women family workers predominate. अभी यह एक बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए. The report also notes that in recent years, employment in agriculture has gone up. So agriculture में grow up और even though हमें ट्रांजिशन करना है कि फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर में हमें उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है लोगों को. अदरवाइज disguised unemployment is always going to remain. While the share of employment in manufacturing has remained almost stagnant, these are worrying signs that call for a closer examination. ये हमेशा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है इंडियन इकोनॉमी के लिए. The issue of job creation has been central to India's developmental projects. That is something which all of us know. Okay. The challenge is to generate more productive job opportunities. ना productive jobs होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ jobs create कर दी मनरेगा के लिए. वो productive नहीं है in the long run. Employment has also largely been in the form of self-employment and casual wage labor for millions entering the labor force each year. This report has pegged the number of new entrants to labor market to 7 to 8 million people per year. However, recently even as youth unemployment has fallen from 17% to roughly 12% in last 4 years. Unemployment is higher among the urban areas, है ना, young people के अंदर, and among the more educated. More educated के लिए क्यों ज़्यादा होती है unemployment, है ना, even तो logically सही नहीं लगता. उसका मेन रीजन क्या है? उनके स्किल के हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती उनको, and they are not ready to do any kind of menial job. So that's why उनमें unemployment ज़्यादा रहता है. And reaping the demographic, this is what we started our article with, है ना, would require providing more productive forms of employment for these groups. It's going to be a challenge because the production process has become capital intensive and labor saving. है ना, ये रियलिटी बन चुका है. अगर हमारी जीडीपी का मैक्सिमम सेक्टर जो परसेंटेज आ रहा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो सर्विस सेक्टर से आएगा, तो इवेंचुअली आप समझ लीजिए ना जॉब्स ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगे. सबसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं. दैट रिमेन्स वीक. 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना क्या इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है. एंड यू कैन सी द प्रॉब्लम. As the report points out, the skill intensity of employment in industry and services increased during this period, which was contrary to the labor market needs of the country. Over the decades, governments of varying ideological English have announced measures to boost employment generation, and yet so far they have been less than adequate. And it is very important that the next government, yes, because the next government is going to come by June. तो जून में उनको बहुत efforts डालने पड़ेंगे to create the jobs, because without jobs, India is going to face humongous challenges. So this is one of the most important article. इसका डेटा आप थोड़ा सा याद रख सकते हो. जब भी क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, जब भी क्वेश्चन आता है
आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब भी क्वेश्चन आपका आता है ओवरऑल डेवलपमेंट विच इज़ फॉर ईच एंड सबका साथ सबका विकास जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जॉब्स, बिकॉज विदाउट जॉब्स देयर विल बी नो अर्निंग, विदाउट अर्निंग देयर विल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन विच कैन फर्दर फ्यूल इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपको याद रखना है, इसके रिपोर्ट्स आप लिख लीजिए इकोनॉमी के टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट। देन बीच में इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है कि हाउ द बियर इज बीइंग क्राफ्टेड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ साथ में हर इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। दे हैव टॉक्ड अबाउट अ स्पेसिफिक गॉड निंसाकी, शी वाज अ गॉडेस ऑफ ब्रूइंग इन एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन, एंड हाउ द इवेंचुअली बेल्जियम में बहुत फेमस बियर्स रहती हैं, तो इन दोज बियर पार्लर्स इवेंचुअली दे आर नाउ यूटिलाइजिंग, दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग कि कैसे नया टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। So you can see how the AI is now going to become very, very prominent in each and every part of human activity. And this is just an example for that purpose. कभी ऐसे में लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब लाइट हार्टेड है, बट ऑन द अदर हैंड एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है ओवरऑल। Now, one article has come with respect to social security. Social security is something which is required by each and every individual. इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का देखो लेवल बहुत कम है आज की डेट में, और ये हमें कैसे पता चलता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. So this article talks about that social security is a human right as per the UN Declaration of Human Rights. And the UN Declaration of Human Rights आया था around 1948, and that included social security. कि security होनी चाहिए लोगों के पास. Even ILO's recommendation of 2012 has called for all nations to institute social protection floor. And इनकी जो recent report है ILO की World Social Protection Report 2022, this says that India spends too little on social protection. And why is it important can be seen from the corona pandemic era, where the people they're saving, they got devastated because of that. And as the events of 2020-21 remind us, precarious and vulnerability remain concerned, with informal employment in India as high as 90% of the workforce. Right. So they've come out with a report, है ना, इस रिपोर्ट के अंदर क्या, जैसे क्रिजिल ने एक रिपोर्ट दिया है, 2023 found out that 11 स्टेट जहाँ उन्होंने स्टडी करी, शेयर ऑफ इकोनॉमी है ना डिवोटेड टू सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.2 to 1.3% on average to 1.6% in last 6-7 years, and this trend has been increasing in 3 states. They announced in fact न्यू इनकम ट्रांसफर स्कीम्स फॉर वुमेन, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट चल रही है इसके रिगार्डिंग, हिमाचल, छत्तीसगढ़, इन्होंने भी क्या है. So women has become a very important constituency with respect to elections, and I think that's a very good thing, because eventually उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से काफ़ी सारी स्कीम्स इसके लिए डेवलप होती जाएंगी, एंड they're going to play a very important role. Who is going to become the majority government? It is well known that to begin with, ऐसे कि सब one of the biggest social welfare program है वो MG नरेगा है. If we see, this provides a specific income on daily basis. Okay, and during the COVID, मनरेगा and our National Food Security Scheme (NFSA) वाला जो scheme है, National Food Security Act, they were expanded to include around 800 million households. So they were also examples of social protection. And on the other hand, if you see like Congress has come out with a बेसिक मोर इनकम स्कीम है ना, जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का बात करते हैं, तो ऐसी एक स्कीम है इनकी IAS न्याय के रिलेटेड है, एंड इट्स मेनी वर्जन्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन छत्तीसगढ़ एज वेल एज राजस्थान. नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग सेवरल सेल्फ. तो ये जो आर्टिकल है ये मेजरली फोकस कर रहा है कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो भी रिसेंटली है, तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हो इन स्कीम्स का, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स याद कर सकते हो, सो दैट अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, या फिर मेंस में कोई आंसर राइटिंग करनी पड़े कि इवेल्युएट द सोशल सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आप स्टेट वाइज भी जा सकते हो और इंडिया लेवल पे भी जा सकते हो. लाइक वुमेन स्पेसिफिक अगर हम स्कीम्स का बात करें, तो व्हाट डू वी हैव विद रिस्पेक्ट टू देम, schemes are covering their education expenses, free public transport in Delhi, like subsidized LPG, cash transfer has been floated. States like Delhi and Himachal, they have announced cash income transfer schemes for women. Ujjwala scheme आया था with respect to LPG गैस सिलेंडर, है ना. इनफैक्ट इवन जनधन योजना के अंडर भी उनको थोड़ा सा 3 इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज़ दिए गया था. इनफैक्ट लाडली बहना स्कीम वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ द BJP गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश. That also provided 1,250 rupees per month was given to poor women beneficiary. Even in Tamil Nadu, we have seen similar scheme with the transfer of roughly 1,000 rupees per month. So the focus on the moon is something which is now becoming good politics, which I said in the beginning itself, वो अच्छी चीज़ है. Alright. Even in Rajasthan, social protection was introduced on larger basis from 2000, but it still has no legal backing.
ये अब एक थोड़ा सा इशू है हमारे साथ में कि लीगल बैकिंग अभी भी नहीं है ना। इन द एब्सेंस ऑफ लीगल बैकिंग इज देयर एनी एश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सच वेलफेयर स्कीम? कभी भी बंद हो सकती है ना, वो तो लीगल बैकिंग इन चीज़ों की है नहीं। एंड सम लेस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय वेयर द पॉलिटिकल कंपटीशन इज रीच, लाइक गुजरात। तो इन्होंने पूरा एक केस स्टडी दिया है अलग अलग स्टेट्स में क्या स्टेटस है सोशल सिक्योरिटी, किस तरीके की स्कीम्स आ रही है विच आर सप्लीमेंटिंग द इनकम विच इज अर्न बाय द पीपल। इवन कांग्रेस हैज कम अप विद युवा न्याय एंड नारी न्याय स्कीम्स, ये बोल रहे हैं कि भाई हम लेके आएंगे। However, the most important thing which is required is social security code, which remains unimplemented even today, and thus the goal of instituting credible social protection framework consisting with India's level of development remains very much a work in progress. So if we talk about inclusive growth, this is a must. If we are talking about eradicating poverty, this is a must. ये सारे टॉपिक्स को ना आप लिंक करना चाहिए, जितना ज़्यादा लिंक करोगे इवेंचुअली उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द एक्सप्लेन सेक्शन। एक दो टॉपिक इकोनॉमी में ले लेते हैं। इकोनॉमी में जैसे कि एक टॉपिक आपको पता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछने लग गया है ना। वॉल स्ट्रीट की कोई मूवी वगैरह देख लिया आई थिंक वहाँ पे। सो ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, हाउ विल इट बेनिफिट इन्वेस्टर? तो देखो सेटलमेंट क्या होता है, इवेंचुअली अगर आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हो, ठीक है, विद इवेंचुअली द मनी दैट यू पुट इट विद एनी ऑफ द ब्रोकर, जैसे मान लो एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़रोदा हो गया, तो आप परचेज करते हो, तो आपको जो शेयर्स होते हैं ना सेम डे नहीं मिलते हैं अभी तक। अभी तक जो सेटलमेंट चल रही है T+1 है, जैसे आपने आज शेयर परचेज किए तो वो परचेज हो जाएंगे, बट आपको जो शेयर्स है वो डिलीवरी नेक्स्ट डे आपको मिलती है, नेक्स्ट डे आपके डीमेट अकाउंट में वो आते हैं। बट आप से भी बोलना कि सेम डे करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज T+0 सेटलमेंट। ऑलराइट, द BSE एंड NSE बोथ दीज आर द एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दे आर इंट्रोड्यूसिंग द ट्रेडिंग इन T+0। बट ये जो है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इक्विटी, सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं, देखो इक्विटी होता है, फ्यूचर्स होता है, F&O होता है। तो जो मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली इक्विटी सेगमेंट में कैश में ही काम करते हैं। एंड द बीटा वर्जन इज बट ओनली फॉर 25 स्क्रिप्स। स्क्रिप्स मीन्स कोई भी स्टॉक, किसी भी कंपनी, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विद इन लिमिटेड सेट ऑफ ब्रोकर, तो वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि आपको सेम डे बेसिस पे, जैसे मान लो अगर आज आपने कुछ स्टॉक्स परचेज किए तो इवनिंग तक आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर आज आपने कोई स्टॉक सेल किए सेम डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ऑन द सेम डे। पूरा आपके कोई भी अमाउंट रिजर्व नहीं किया जाएगा फॉर एनी पर्पस, है ना। बेनिफिट्स देखो बहुत सारे हैं। इट विल ब्रिंग कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस टू इन्वेस्टर एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम। तो काफ़ी सारे फायदे हैं इन लोगों के लिए। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बहुत बड़ा फायदा है उसके लिए। एक्चुअली वो अपना चाहे तो अपना फिर साथ में पैसा दोबारा दूसरी चीज़ों के लिए यूज करता है, दूसरे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, उसको रिक्वायरमेंट है तो उसको बैंक में भी विड्रॉ कर सकता है, तो वो सारे फायदे हैं उसके। ओके, विद सिक्योरिटीज आर अवेलेबल, तो उन्होंने सिक्योरिटी भी दिया हुआ, जैसे कि अंबुजा सीमेंट हो गया, अशोक लेलैंड, तो जो मेजर मेजर कंपनीज हैं, BPCL हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, हिंडाल्को, JSW स्टील, LIC। तो अभी 25 स्क्रिप्ट्स में यानी कि अदर सिक्योरिटी इंक्लूड LTI, माइंट्री एक्सेट्रा, अभी आगे और में भी होने वाला है धीरे धीरे करके। ओपन पार्टिसिपेट सारे इन्वेस्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज सेम, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ट्रेडिंग टाइमिंग तो वो सेम ही है। T+0 सेटलमेंट विल बी continuous trading from 9:15 AM to 1:30 PM. Settlements of fund will be completed on the same day by 4:30 PM. तो नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट चलता है वो 3:30 तक चलता है, लेकिन अगर आपको सेम डे सेटलमेंट चाहिए तो वो 1:30 PM तक का ही टाइम उन्होंने डाला है। बट विल द प्राइस बैंड, so the price band will be operated for the price plus 100 basis point from the price in the regular T+1 market. It will be recalibrated after every 50 basis point movement within the underlying T+1 market. तो कुछ ये थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको हम बाद में इकोनॉमिक्स क्लासेस में देंगे, बट एनीवे जो बेसिक नॉलेज है वो आप इससे ले सकते हो। नाउ वी सी द एक्सप्लेन सेक्शन। अब एक्सप्लेन सेक्शन में इन्होंने एक आर्टिकल दिया है, एक्सप्लेन ग्लोबल, वेयर दे टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस इन US। So US में two candidates are very prominent at this point of time, that we have Joe Biden and Donald Trump. Donald Trump previous president and Joe Biden is the current president. Now one person has entered, Robert Francis Kennedy Jr. So he has entered the fray and he's trying his level best to become the third alternative. He's trying to become an independent personality with respect to this. तो उसके ऊपर थोड़ा सा राइट अप दिया, विच इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, तो उसको हम नहीं लेंगे, बस आपको इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि कौन सी और कंट्रीज में जनरल इलेक्शंस हैं इन द करंट ईयर 2024। तो इंडिया का नाम आ जाएगा, USA का नाम आ जाएगा, तो वो आप याद कर लीजिए, है ना। इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन ऑफ ट्रेड। नाउ रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर, है ना,
जो फॉरेन मिनिस्टर है इनके पाकिस्तान के, मोहम्मद इशाक दर, ही टॉक्ड अबाउट that we should seriously examine the question of resuming trade with India. क्यों? Because eventually Pakistan is going through a very big crisis. WTO में भी उसके खिलाफ काफ़ी केसेस चल रहे हैं, IMF के साथ बोरो कर रहे हैं, बेल आउट पैकेज चल रहा है. तो इन सच सर्कमस्टांसेज इट वुड बोड वेल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेंसी भी डिप्रिशिएट हो गई है, दैट दे कुड गो फॉर द ट्रेड. सो इवेंचुअली अभी हमारा रिसेंट ट्रेड कब बंद हुआ तो ये जान लेते. रिसेंटली जस्ट आफ्टर जब आर्टिकल 370 को स्ट्रक डाउन किया गया था in 2019, after that Pakistan has stopped trade eventually. Like other aspects of India-Pakistan relationship, trade too has been impacted by the hard line on Kashmir and its support for terrorism. So दो बहुत बड़े issues हैं in our relationship with Pakistan. What explains the timing है ना, अगर हम इनकी बात करें तो क्या specific reasons हैं. Number one, deepening Pakistan economic crisis, and eventually also how the assistance is being sought from IMF. The second major factor it is from the business community. Business community is also asking that if the imports are eventually going to come down, है ना, because of the low price of the Pakistan rupee, export ही नहीं कर पाएंगे कहीं पे तो करेंगे क्या? That's why this is the most important time where the exports are opened up and currency depreciated भी उनके, तो उनको फायदा भी हो गया. आप सब जानते हैं जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट नॉर्मली इंक्रीज होते हैं, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है वहाँ पे लोग ज़्यादा बाय कर लेते हैं. ऑल्सो मैंशन ट्रेड विद इंडियन इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, दैट वी ऑलरेडी नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होती है वो लार्जली दुबई के थ्रू होती है, एंड दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, बट दैट इंक्रीजेज द कोस्ट एफिशिएंसी एज वेल एज आपका जोग्राफिकल डिमांड जो है वो जोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यार बेटर रहेगा ना पंजाब के साथ ट्रेड किया तो दुबई जाओ, दुबई से वापस फिर यहाँ पे ट्रेड होगा. तो दैट इज समथिंग विच इज नॉन सेंसिकल. Plus, if we see the GDP of India and Pakistan, so India की GDP is roughly 10 times the GDP of Pakistan. So this is something which is important, and one more very important factor which is leading to this situation, it is that they are having a kind of strained relationship with Afghanistan as well as Iran. So in this case, in fact, India के साथ tie ज़्यादा stable है than is Western frontier. तो Eastern frontier पे ज़्यादा stable है. थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि फिर अगर हम बात करें ट्रेड की, है ना, तो चार्ट इन्होंने दिया हुआ काफ़ी अच्छे से, एंड दैट्स इज समथिंग विच वी कैन बी अंडरस्टैंड. तो 2023 से लेके अभी तक का डेटा दिया हो 2019, उसके बाद तो ट्रेड स्टॉप ही हो गई. तो रफली जो लास्ट ट्रेड थी दैट वाज अराउंड $2.5 बिलियन. ओके, ये मिलियन डॉलर में डेटा दिया हुआ, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे $2.5 बिलियन के आसपास का है. और ये हाईएस्ट मोस्ट नहीं था 2013-14 के आसपास, इट वाज अराउंड $2.7 बिलियन. तो इसी रेंज में लगभग इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रहा है. दिस इज द लेवल ऑफ इट. ओके, देन हाउ सीरियस कमेंट शुड बी टेकन. अब इशू ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट मान जाती है, ओके, बट आर्मी they have their own way of going about things. So issue is this, nothing is no consensus in Pakistan on this issue. 2021 Pakistan allowed trade in sugar and cotton but reversed the decision a day episode that highlighted the complexity of engaging with India in Pakistan. Back channel negotiation between Indian security establishment and Pakistan army led to renewal of the 2003 ceasefire along the LOC. Then there was also a proposal to initiate confidence building measures. The resumption of trade was considered like that, but eventually then Pakistan Prime Minister Imran Khan, who was also supported the proposal but flipped where it went from before the cabinet after he faced opposition from the hardliner. तो ये प्रॉब्लम्स यार देखो चलती रहती है वहाँ पे. पाकिस्तान की जो आर्मी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बार बार उसको खराब कर देती है. इन्होंने बहुत सारा बात किया हुआ, लेकिन एज सच एग्जाम के स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कुछ काम की चीज़ है नहीं. पाकिस्तान हैज पुट प्री कंडीशन दैट की टॉक्स तभी करेंगे व्हेन द आर्टिकल 370 इज गोइंग टू बी रिवर्स. पर वो तो होने वाला है नहीं, है ना. ओनली द स्टेटहुड इज गोइंग टू बी गिवन बैक टू देम बाय सितंबर दिस ईयर एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इंडिया टू वुड नॉट वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज even our external affairs minister has said very categorically that trade and terrorism cannot go together. तो अगर हम इन सिचुएशन देखें तो हमें बहुत ज़्यादा होपफुल होना नहीं चाहिए कि कुछ होने वाला है. बट स्टिल if the economic interdependence comes in between India and Pakistan, that's the best guarantee of normalizing relation in the long run. Because वो सबसे अच्छा तरीका होता है. आज अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है तो उनका एक सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. 1990s Pakistan was on offensive, and at that time India was giving concessions to them. But right now India is on the stronger side because of its national standing, international prestige. It is enjoying G20 को हम लोगों ने इस टाइम पे ओवरऑल हमने पूरा एक समिट हमारे यहाँ पे हुआ है. तो दैट्स वाई इंडिया अभी बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान.
That's why eventually the ball is now in the Pakistan court. Now they have to think about it. Agreements such as SAARC preferential agreement have been signed, but Pakistan was not interested in trade. 2010 में Manmohan Singh government also tried. Even World Bank was negotiating. Okay, that Pakistan can buy fuel from Jalandhar refinery. Initially they said yes, later on they said no. So army always comes in और वो फिर कहानी खराब कर देती है. Even in the SAARC summit of 2014, members agreed to facilitate movement of trucks as well as train, but पाकिस्तान आर्मी ने उसको ही ब्लॉक कर दिया था. तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भाई होने ही नहीं दे रहा है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए. And the abolition of 370, which has shocked recently Pakistan, but the issue is India is not getting criticized by its best friend like Saudi Arabia and UAE are not criticizing India. Alright, and that's something which is important. And how soon can we think about कि इकोनॉमिक टाइज नॉर्मलाइज हो सकते हैं? तो अभी तो देखो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी इवेंचुअली. सो दिस इज द टाइम फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी बाय द टू साइड. अभी बहुत बड़ा स्टेप्स तो ले नहीं सकते. बेनिफिट्स क्या होंगे वो देखो हम सबको पता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड. सो इवेंचुअली दिस कैन सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, वो हेल्प सकता है. ठीक है. सेकेंड, if they give this status of MFN most favored nation status जो कि WTO के रूल्स के अंदर देना चाहिए, the discrimination against New Delhi as a trading partner can further get reduced and eventually our geopolitical जो tensions है वो भी कुछ level तक reduce हो सकती है because China is also increasing its debt trap diplomacy. पाकिस्तान को वो पता है but now they are already engulfed by the Chinese, you can say dragon, है ना, dragon word use करते हैं उनके लिए. तो वो एक बहुत बड़ा problem है उनके लिए. Now this is the same report जो ऑलरेडी हमने ऊपर बात कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, है ना, उसी को उन्होंने डेटा के थ्रू दिया हुआ है. बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट से इसके अंदर जाने की जरूरत है नहीं बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में बस एक इंडेक्स आप यूज़ कर सकते हो. दे हैव टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2000 टू 2019 और इन्होंने एक इंडेक्स बताया है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, ओके, विच हैज इम्प्रूव फ्रॉम 2004-5 टू 2021-22. इस इंडेक्स के अंदर देयर आर 7 लेबर मार्केट इंडिकेटर्स, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रेगुलर फॉर्मल वर्क, परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर, परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, average monthly earning of casual laborers, unemployment rate of secondary and above educated youth, and youth not in employment and education or training. So this indicator has come in this India employment report given by Institute of Indian Human Development and International Labour Organization on Tuesday. तो इस रिपोर्ट का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एडिटोरियल में, तो ऐसा रिपोर्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है. तो उन्हीं चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है. ये इंडेक्स बस थोड़ा सा याद कर लेना कि एक नया इंडेक्स इसके अंदर आया है. ठीक है. तो अगर हम बात करें ओवरऑल ऊपर से, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया, तो ये तो आप याद रखेंगे. इट 55%. कैजुअल एंड रेगुलर जो है 22 एंड 21 है, तो रेगुलर सबसे कम है आउट ऑफ द 3. देन अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट हैज रिमेन मोस्टली स्टेबल, उसी के आसपास पे ओवर डाउन कर रहा है. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड टू 23.8% रफली फ्रॉम द 14.2%. दिस रिवर्स बाय 2022 एंड इवेंचुअली उसके बाद में ये फिर से जो हमने ऑलरेडी डेटा बात की 21.5 हो गया. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वो इंक्रीज हो गया है. अब पहले 2019 तक डिक्लाइन हुआ था बट नाउ इट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, क्या वो 32.8% के आसपास जो है वो हो चुका है. हाउएवर स्टिल देयर इज अ वेरी बिग जेंडर गैप बिकॉज जो मेन है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वुमेन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियली तो देखो हो गया था बट राइट नाउ द प्रॉब्लम इज देयर इज अ राइज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट. तो इनिशियली तो हुआ है नेचुरली बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है 42% आ चुका है फ्रॉम अराउंड 60% इन 2000. तो 20 साल का देखें तो हाँ ट्रांजिशन है, बट अगर भी इमीडिएट ट्रांजिशन की बात करें तो वैसा कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ नहीं है. यूथ एम्प्लॉयमेंट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन वाज अराउंड 83%. ऑलराइट, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम. तो वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया है 5 की एरियाज पे फोकस करना चाहिए. प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन, इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, एड्रेसिंग लेबर मार्केट इनइक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग स्किल्स एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी एंड ब्रिजिंग द नॉलेज डेफिसिट ऑन लेबर मार्केट बर्डन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट. तो ये आप सजेशंस दे सकते हो व्हाट शुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया. तो ये आप याद रख सकते हो. ठीक है. एंड वी हैव टू बी वेरी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, दिस इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द लेबर मार्केट. तो उसको भी हमें ध्यान में लेकर चलना है. इसके हिसाब से स्किल्स डेवलपमेंट करनी है. इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड इन द इमर्जिंग केयर एंड डिजिटल इकोनॉमी, जिस पे फोकस करना चाहिए. लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इररेगुलर वेजेस एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट are going to pose significant challenges for the gig and the platform worker. जितने प्लेटफॉर्म है स्विगी जोमेटो वगैरह हो गए, जितने भी ऐसे पोर्टर करके हो गया, तो उन पर यार बड़ी दिक्कत आने वाली है. इकोनॉमिक पॉलिसी रिक्वायर्ड टू बूस्ट प्रोडक्टिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट गोइंग इन द फ्यूचर.
so that we can cater to the 7 to 8 million youth who are becoming a part of it annually to the labor force during the next decade. तो आप सोचो ना 70 से 80 लाख यूथ जो है हर साल going to become part of the labor market, और अगर जॉब्स होंगे ही नहीं तो फिर कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? And that's why we need to support MSMEs, providing them with digitalization as well as AI. तो ये सारा आप यहाँ पे कर सकते हो. इसके ऊपर उन्होंने डेटा भी दिया हुआ है ओवरऑल कि किस तरीके से मतलब हमारा डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आज का जो डिस्कशन था आप सब लोगों को पसंद आया. अब हम जो मैंने आपको बात किया था दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दीज आर्टिकल्स, और साथ में फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस भी हम शेयर करेंगे ऑन डेली बेसिस. दैट इज ऑलमोस्ट रेडी, तो बड़ी जल्दी हम उसके साथ शुरुआत कर देंगे. एंड प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दिस. अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे सिविल सर्विसेज में. विल गेट गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.